नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूं। पिछले 2 संडे हम लोग एक जुलाई 24 का जो रिजर्व बैंक का सर्कुलर है उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि ये सर्कुलर इतना आसान नहीं है, उसको कंप्लाई करना। यानी यू नीड टू हैव लॉट ऑफ सिस्टम्स एंड मेथड्स इन प्लेस, एंड दिस इज़ अबाउट द फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। हमने 2 संडे में देखा कि इनिशियल टॉपिक क्या है, और last Sunday we talked about the system of early warning signals which the cooperative banks must have, which was mandatory for T3 and T4 banks. But then T1 and T2 bank can also learn from that and can have their own system. Even if the bank is small, they can look to devise a mechanism through which the fraud could be prevented. That is the whole intention of this particular circular. Today I'll be talking about the reporting systems and mechanism and what the Reserve Bank of India expects you to do. Probably next Sunday we will have an expert who will talk to us about the difference between the previous method of fraud reporting and the new guidelines, how they have changed, they have migrated more towards the technology. The regulation is moving towards the technology. So we'll be having those discussions on the next Sunday. And before that, I would just like to brief you about the residual part of our discussion which we have not covered in the past 2 Sundays. मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो डिस्कशन कंक्लूड होना चाहिए. दैट हैज़ टू बी कंक्लूडेड. So as far as I am concerned, this is going to be the last part on fraud prevention mechanism or fraud risk management system or methods. Whatever I am going to talk today is applicable to all cooperative banks, irrespective of the category, whether you are a T1 bank, T2 bank, T3 bank or a T4 bank. This is all applicable to you. As I find that the instances of fraud and incidences of fraud are increasing, and therefore the awareness amongst the cooperative bankers must be there. मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि कमर्शियल बैंकों के लिए उन्होंने जो मेथड्स लाए हैं उसमें एक मेथड है रेड फ्लैगिंग ऑफ एन अकाउंट. It was a part of early warning signal. This has not been made mandatory to the urban cooperative banks. So what has been made mandatory to urban cooperative banks? T3, T4 के लिए मैंने लास्ट संडे को आपको बताया था कि क्या उन्हें सिस्टम सेटअप करना है. और आज मैं सभी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए बोल रहा हूँ कि रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है, आपको क्या रिपोर्ट करना है. इवेंट अगर होता है तो इवेंट होने के बाद में मेरा ये मानना है कि हम लोग सोच में पड़ जाते हैं क्या करना है. रिजर्व बैंक ये कहती है कि आपको इमीडिएटली फ्रॉड जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जैसे कि पुलिस है या CBI है या ED है, नॉर्मली पुलिस, because when you if the fraud value is more than say 5 crores, it goes to economic offences wing in the state of Maharashtra. I am not aware of the provisions in other states, but then depending upon the value, it could go to criminal investigation department of a particular bank or whatever. That classification you have to verify from what it exists in your particular state, because this video is being watched across the country. So you need to know depending upon the value where it should go. Simple or suffice to say, आसान है ये कहना कि जैसे फ्रॉड डिटेक्ट होता है आपको पुलिस के पास जाना है. हम आनाकानी करते हैं पुलिस के पास जाने में. क्यों करते हैं? क्योंकि पुलिस का मेथड ऐसा होता है, उसमें हमें ऐसा लगता है कि ये इसमें है ना धुलाई करते हैं हमारे ही लोगों के, हमारे ही स्टाफ की ये लोग बहुत धुलाई करते हैं, तो हम टालते हैं इसको. टालिए मत. क्यों नहीं टालना है? अगर तुम्हारे स्टाफ ने इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं की है, तुम्हारे एम्प्लॉइज दे आर नॉट इन्वॉल्व, दे विल कम आउट क्लीन. पुलिस का इन्वेस्टिगेशन मेथड ही पूरा अलग होता है. वो उनको तो क्या जिसको हम कहते हैं ना कि वो प्रेफर करते हैं 3rd डिग्री पे. लेकिन अभी वाइट कॉलर फ्रॉड में उन्होंने अलग अलग मेथड्स लाए हैं जिसमें अगर क्रिमिनल बंदा तुम्हारे बैंक में काम करता है तो उसको क्रैक करने में टाइम नहीं लगता है, वो आराम से क्रैक हो जाता है. ये this is something which is not stated by Reserve Bank of India, but what Reserve Bank of India under chapter 5 of that particular saying is that you have to report immediately the incidents to the appropriate LEA, that is Law Enforcing Agency.
state police, subject to applicable laws is what they are saying. And then वो ये भी उसी ब्रेथ में ये कहते हैं कि भाई ये जो फ्रॉड का जो एंगल है उसके लिए हर एक बैंक में एक डेडिकेटेड ऑफिसर होना चाहिए, एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए। नोडल ऑफिसर किस लिए चाहिए? सूटेबल नोडल ऑफिसर का मतलब ये है कि जिसको अनुभव हो बैंकिंग का, और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबके साथ वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के साथ में भी जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा कर सके। तो ये नोडल ऑफिसर शुड बी ए सीजन्ड बैंकर इज़ व्हाट आई बिलीव। उसके बाद में वो ये कहते हैं कि रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। हमारे यहाँ जो दुर्घटना अगर हो भी गई है तो इनमें से किस में वो बैठती है ये आपको चुनना है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये कहाँ पे आता है? आप जानते होंगे कि रिजर्व बैंक आपको ये हमेशा कहती है कि भाई यू हैव टू कंफर्म द इंड्यूज़। आप जो भी पैसे देते हो उसका इंड्यूज़ आपको कंफर्म करना है। क्यों करना है? अगर तुम्हारा बोरोवर इंड्यूज़ कहीं और करता है, इट कैन फॉल हियर, द फंड्स हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड। आपने किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए पैसे दिए और वो बंदे किसी और काम के लिए यूज़ करके चला गया। वो आपको पैसे दे रहा है, नहीं दे रहा है, रेगुलरली दे रहा है, अलग बात है। अगर वो रेगुलरली EMI भी भरता है लेकिन फॉर द पर्पस फॉर विच द फंड्स हैव नॉट बीन यूज्ड और मिसअप्रोप्रिएट कर दिए हैं, इट्स अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इट हैज़ टू बी डिफाइंड एज अ फ्रॉड इज व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सीइंग। फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा अगर इनकैशमेंट की गई है तो वो बोरोवर जो होगा या जो डिपॉजिटर होगा या जो अकाउंट होल्डर होगा वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ऐसा मतलब आपको निकालना है और रिजर्व बैंक को बताना है। पैसा वसूल हो गया तो भी बताना है। क्यों बताना है? इसकी वजह यह है कि ये जो एक्ट इस बंदे ने करी है वो कहीं और जाके फिर से ना करे। आपको लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी में आप बताने के बाद भी आपको रिजर्व बैंक में बताना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को बता दिया और फिर आप चुप बैठे। नो, why you have to report to Reserve Bank of India? Because Reserve Bank of India then circulates or devises, modifies its instructions on the basis of particular account. Manipulation of books of accounts and through fictitious account and conversion of property. This is one of the serious area, especially in respect of the credit business. आप जानते होंगे कि कई बार आपके जो स्टॉक स्टेटमेंट्स आते हैं वो स्टॉक स्टेटमेंट्स उसका जो वैल्यू होता है वो उनके बैलेंस शीट में नहीं आता है, क्योंकि बैलेंस शीट में दिया हुआ स्टॉक स्टेटमेंट और आपको दिया हुआ स्टॉक स्टेटमेंट इसमें अंतर होता है। कई बार प्रैक्टिकल आपको इसको देखना चाहिए, फ्रॉड करना है नहीं करना है। जैसे कि स्टॉक ही नहीं है, ज़ीरो स्टॉक इज़ देयर एंड द फेलो इज रिपोर्टेड इन द स्टॉक स्टेटमेंट दैट देयर एग्जिस्ट अ स्टॉक, दैट्स अ फ्रॉड। Variation in balance sheet and variation in the stock statement that is given to you for monitoring the drawing power in a working capital limit are two different things. You have to decide to what extent you can digest the deviation. Why I am telling you that there cannot be a benchmark on this deviation, but then you have to take a reasonable stand. Reserve Bank of India in terms of monitoring the drawing power has not come out with any guidelines because they have been saying that as far as working capital limits are concerned, each bank has to decide the method of lending. और इसी वजह से बैलेंस शीट में भी अगर स्टॉक कहीं अलग आता है तो रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर आपको पूछता है, लेकिन वो आपको पकड़ के ठोक नहीं सकता है क्योंकि दिस इज़ योर मेथड। ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट एवरी बैंक फॉलोज द MPBF method in analyzing the working capital requirement of the borrower, and the concept of drawing power has not gone away. We have not been able to work out towards the cash flow system of working capital assessment. We have not moved towards that. So as long as we are following that drawing power method of cash credit, you need to ensure that the statement which the borrower is giving are the statements which are reflected in the balance sheet. Especially 11 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं होता सर, प्रॉब्लम कब होता है 12वें महीने में 31 मार्च. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट एरिया. फिक्टिशियस अकाउंट्स करके बोगस, आपने अगर क्रेडिटर्स का रिलीफ देना है बैलेंस शीट में, उसके कुछ क्रेडिटर्स है वो बोगस क्रेडिटर्स है,
फिक्टिशियस अकाउंट्स, और पैसा आपने दिया वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और वो प्रॉपर्टी उसने बाद में बेच दिया, आपको बताया ही नहीं. दैट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टीज. व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेइंग. हम लोग हमारा नेचर क्या है? हमारा नेचर ऐसा है कि भाई मेरा EMI आ रहा है, मेरा वर्किंग कैपिटल लिमिट अच्छा चल रहा है, कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में नहीं है. गलती कभी में करना ही है. इफ़ देर इज़ नो प्रॉपर्टी एंड बोरोर हैज सोल्ड आउट द प्रॉपर्टी, कंसिडर दैट एज अ फ्रॉड, because this fellow can cheat other banks as well, and therefore you have to take that mental into the hand. If you do not do that, you would be considered by the regulators or the law enforcing agencies as hand in glove with the borrower. अब hand in glove का मतलब मुझे समझाना नहीं है, आप उसके साथ में लफड़ा कर रहे हो, ऐसा मतलब उसका निकाला जाता है. Cheating and concealment of facts with the intention to deceive any person. Cheating बाई इम्पर्सोनेशन. चीटिंग बाई इम्पर्सोनेशन तो कभी आसान है. आदमी का नाम एक है, पैन कार्ड एक है, आधार कार्ड है, ट्रूली बंदा कोई और ही है, दैट इज़ इम्पर्सोनेशन. फैक्ट्स कंसील करना. प्रॉपर्टी बोरोर के नाम पे नहीं है, लेकिन आप जानते हैं प्रॉपर्टी कार्ड PDF अगर आता है तो PDF को वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद उसमें चेंजेस करके फिर से बाद में उसको PDF करके आपको दिया जा सकता है. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. फैक्ट कंसील कर दिए, आपको डॉक्यूमेंट दिए, आप खुश. जब आप 4 चढ़ाने जाते हो तब आपको पता चलता है कि हम तो उल्लू बन गए. सो दैट्स वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. फोर्जरी अगर किसी डॉक्यूमेंटेशन में है, फॉल्स स्टेटमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी अगर वो फोर्जरी करता है तो दैट you have to report. Willful falsification, destruction, alteration, mutilation of any book, electronic record, writing, valuable security or account with intent to defraud, with the intent to defraud. This is the wider definition that the Reserve Bank of India has brought in. Digitally या अदरवाइज ऑल्सो भी अगर कोई प्रॉपर्टी में चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं विद द इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड एज अ फ्रॉड. Fraudulent credit facilities extended for illegal gratification. बैंक के अधिकारी ने पैसा लिया और उसको कैश क्रेडिट लिमिट दे दिया, पर्पस कुछ भी हो, और इसमें अगर ग्रेटिफिकेशन के एविडेंसेस मिल जाते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ फ्रॉड. यू हैव टू रिपोर्ट दैट. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई है वो ये है कैश शॉर्टेजेस ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड्स. पुराने फ्रॉड के गाइडलाइंस में क्या था, 10,000 तक या कुछ दे हैड स्पेसिफाइड सम अमाउंट, 1,000 तक या 10,000 तक कैश शॉर्टेज आ गया तो यू हैड टू रिपोर्ट दैट एज अ फ्रॉड. अभी डेली कैश शॉर्टेज आता है, डेली कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है. 100 रुपये की, 1,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, 5,000 की गलती हो जाती है कैशियर से. इंटेंशनली नहीं करता, आपको आप जानते हैं कैशियर को, उसका इंटेंशन नहीं है, तो दैट यू नीड नॉट रिपोर्ट एज अ फ्रॉड. There are other disciplinary actions which are required to be implemented, like issuing him show cause for irresponsible work or dereliction in duty or all those things that will come up. But that will not be treated as a fraud if you know the intention is otherwise. Compare this with the example of New India Cooperative Bank where 122 crore were siphoned off. Not overnight, but gradually. That is absolutely अ कैश शॉर्टेज ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड. अभी इन्होंने तो अकाउंट में भी घपला कर दिया था, तो क्या है वो स्टोरी बाद में पता चलेगी. लेकिन अब कैश शॉर्टेज रूटीन बिजनेस में अगर आता है और आप यू ट्रस्ट योर कैशियर बिकॉज दिस इज अ जेन्युइन एरर हैज़ टू बी कन्फर्म्ड बाय द कंसर्न ब्रांच मैनेजर और ऑफिशियल, यू कैन हैव अ सेट अप सिस्टम टू वेदर टू कंसिडर दैट एज अ फ्रॉड और अदरवाइज. पैसे वो बोरो अपना जो कैशियर है वो भर देता है, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, he has to make the payment good. And many banks, if the shortage is bigger, allow the person to pay the cash in installments, and the shortage is debited to suspense account in various banks. That's the system. Of course, that system is also fraught with lot of risk. We'll cover that when we deal with setting up of a system of early warning signals. फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज, कुछ 8-10 बैंक है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, उनको ये देखना है.
fraudulent electronic banking digital payment related to transactions committed to UCBs, इसमें भी फ्रॉड अगर होता है। और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने जो करी है वो ये है, कोई भी घटना, कोई भी चीज़ जिसमें बैंक को ठगने का इंटेंशन है, नॉट डिस्क्राइब्ड हियर, हैज़ टू बी रिपोर्टेड एज अ फ्रॉड। अभी इन्होंने क्या किया है इसमें, इन्होंने ऐसा किया है कि जैसे ही फ्रॉड इन्होंने इनमें 2-3 डेट्स के बारे में इन्होंने कंफर्मेशन का क्लासिफिकेशन दिया, जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। डेट ऑफ क्लासिफिकेशन is very important. Date of classification is nothing but what we talked about, the special committee on fraud, special board committee on fraud. वो कमेटी डिसाइड करती है कि नहीं ये फ्रॉड है। Within from that date, the date of classification, within 14 days, you have to file the fraud report with Reserve Bank of India on an online portal, FMR ऑनलाइन पोर्टल। उसके ऊपर आपको 14 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन आपको करना है। डेट ऑफ डिटेक्शन के बाद में आप इन्वेस्टिगेट करोगे इंटरनली, एंड देन यू विल कम टू कंक्लूजन, देन दी कंसर्न्ड अथॉरिटी विल से येस दिस इज अ फ्रॉड। फ्रॉम दैट डेट sorry, you have to report the event as a fraud to Reserve Bank of India. In the meantime, what Reserve Bank of India expects is that date of detection or आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन फ्रॉड, इसमें कुछ टाइम फ्रेम होता है। कई बार स्टाफ डिले करता है, तो रिजर्व बैंक ये कहती है कि अगर स्टाफ हैज़ बीन नेग्लिजेंट फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन टू डेट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रॉड और टू द डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द फ्रॉड टू द स्पेशल कमिटी, even that staff accountability has to be investigated and accountability has to be fixed. इसमें ये भी कहा गया है कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि जिन लोगों को इस फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है, उनका नाम आपको रिजर्व बैंक को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गलती से इन्फॉर्म हो गया, they have introduced the withdrawal or removal of such names with certain processes. That is what they have defined through a system, online system. फ्रॉड के बारे में ऐसा है कि रिकवरी होने के बाद भी कई बार लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट केसेस चलते रहते हैं, तो आपको क्लोजर करने के लिए वो ये कहते हैं कि ये एक्शन अगर हो जाते हैं, जैसे कि फ्रॉड्स केसेस पेंडिंग विथ law enforcing agencies and court are disposed of and the examination of staff accountability has been completed, you can withdraw the fraud case through after going through reporting through the portal which has been designed by the Reserve Bank of India. Even if you have reported closure, you have to maintain all the record of fraud for the examination. चेक रिलेटेड फ्रॉड के बारे में आसान कहा गया है कि जो कलेक्टिंग बैंकर है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, पेइंग बैंकर जो है उसको सब जिम्मेवारी लेना है। कलेक्टिंग बैंकर के बारे में उन्होंने यही कहा है कि वो फ्रॉड रिपोर्ट कब करेगा, अगर उसको गलत बंदे को पैसा गया है, इन विच केस द कलेक्टिंग बैंकर हैज़ बीन पुट टू लॉस, देन दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फ्रॉड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। 1 करोड़ के ऊपर अगर आपका किसी बोरोर को आप क्रेडिट फैसिलिटीज देते हो, तो आपको ये करना है कि उसके जो टाइटल्स है उसके बारे में आपको उसके सैंक्शन लेटर में एक कंडीशन लाना बहुत ज़रूरी है। वो कंडीशन ये है, दैट इज़ लीगल ऑडिट ऑफ द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। यू हैव टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी इन योर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी कि भाई हर 2 साल के बाद हम लोग लीगल ऑडिट ये डॉक्यूमेंट्स का हम लोग करेंगे। अभी ये जो लीगल ऑडिट आप करोगे, इट विल बी थर्ड पार्टी एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट विच विल कन्फर्म दैट द टाइटल इज स्टिल इंटैक्ट इन द बोरोर्स नेम एंड योर चार्ज स्टिल एग्जिस्ट्स। ये 1 करोड़ के ऊपर की जितनी भी फैसिलिटीज है उनको आपको फ्रीक्वेंसी आपको डिसाइड करना है। जैसे आपने 10 साल का लोन दिया है, तो ये 10 साल में कम से कम 3 बार या 4 बार यू कैन कंडक्ट एन लीगल ऑडिट। ऑफ कोर्स द कॉस्ट ऑफ दिस लीगल ऑडिट हैज़ टू बी बोर्न बाय द बोरोवर। बैंक नीड नॉट फुट द बिल ऑन दिस पर्टिकुलर एक्शन। ARC के को जो रिपोर्ट किए सेल किए गए अकाउंट है उसमें अगर फ्रॉड होता है, उसके बारे में लास्ट संडे को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। रोल ऑफ ऑडिटर्स बड़ा हो गया है। ऑडिटर्स को अगर कहीं फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन या इवेंट नज़र आता है, तो उसको ये ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड और स्पेशल कमेटी जो हमने बनाई है फ्रॉड के लिए, उसको रिपोर्ट करना अनिवार्य है। और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम्स आउट विथ स्पेसिफिक 3 डेट्स
डेट ऑफ अकरेंस, डेट ऑफ डिटेक्शन एंड डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 साल पहले हो गया फ्रॉड, डिटेक्ट अभी हुआ, तो यू विल टेक इट टू द स्पेशल कमिटी एंड डिसाइड दैट दिस इज अ फ्रॉड, दैट इज डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। सिंपल। फ्रॉड हुआ कब, समझ में कब आया, और रिपोर्ट कब करना है। तो हुआ कब की डेट आपको पता चल जाती है, समझ में कब आया ये भी डेट आपको पता होती है। वो जो टाइम नॉर्म्स है वो उसके लिए है। 14 दिन का जो भी नॉर्म दिया है, जो पहले शायद 21 दिन था, वो 14 डेज का नॉर्म है। I'm not very confident in that whether it was 21 days or 14 days. 14 days is the norm, is what I believe. This circular also refers to the 14 days norms for reporting of the fraud, and these 3 dates are very critical. थेफ्ट और बर्गलरी, आपका ATM ही कोई उठा के लेके गया तो आपको इमीडिएट इन्फॉर्म करना है, और उसमें पीरियड दिया है 7 दिन के अंदर, टेक्निकली इमीडिएट ही करना है। डेकॉइटी हो जाती है, आपकी ब्रांच कहीं लूटी जाती है, तो यू हैव टू इंश्योर दैट यू रिपोर्ट within 7 days. Expectation immediate. Within 7 days is fine, they accept कि अगर आपने 7 दिन में किया है, and then you have to keep on reporting. There are quarterly reports which have also been prescribed. सबसे important चीज़ ये है कि 15 जुलाई 24 के पहले जितने भी फ्रॉड के बारे में सर्कुलर थे या मास्टर डायरेक्शंस थी, वो कैंसिल हो गई है, वो विड्रॉ हो गई है। दिस इज़ द ओनली सर्कुलर दैट यू हैव टू फॉलो, and you have to ensure that you comply with this, because your failure to comply, failure to report, failure to identify, failure to detect के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? पता ही नहीं है तुमको, so that is not a failure। लेकिन जिस दिन ध्यान में आएगा उस दिन प्रोसेस चालू करना है। You cannot wait for the eternity, and there has always been a tendency on the part of the banks or the managements to push these issues under carpet for several reasons. I should not talk about the reasons because that will be too much of an argument. लेकिन हम फ्रॉड के बारे में जितना कारपेट के अंदर पुश करना चाहते हैं ना, वो जो एटीट्यूड है या वो जो हमारी सोच है, सोच सही नहीं है। आपको ये सोच बदलनी पड़ेगी। रिजर्व बैंक ने अभी ये जो सर्कुलर लाया है, वेरी सिंपल, but you must comply and you must follow the guidelines which are being given. As assured, we'll be talking to expert on this particular subject in the coming week, and then we will be able to get the comparison of the old system and new system, as also the small issues or some examples which we can get to understand more on the topics of fraud and its reporting. So that we will do, and in the meantime keep watching. You have an opportunity to ask questions on the existing frauds which are committed in your bank and issues that you could face after this particular circular, issues which you are facing, how to handle them. What I'll do on your behalf is this: I'll ask the relevant question and you will get the answer. So anyway, thank you so much for watching this particular episode. This includes my say on the fraud risk management and its reporting, etc. We'll be having one more session on the topic. We have got 7-8 days to record that topic, so you have an opportunity to ask questions as to how the compliance can be kept up to date on this particular circular. So guys, thank you so much for watching this particular circular, and we will also talk about the disclosures in respect of fraud which we have to make. We will be covering up those subjects on next Sunday. So thank you so much for watching. If you like the video, please subscribe to it, share it with everyone, ask all your employees, bank employees, to subscribe to this particular channel. By subscription you virtually get the notification of when the next video is uploaded. Normally it is a Sunday morning, Sunday 11 o'clock I try to upload the video, because Sunday is a easy day normally across the country, and then you can watch it at your leisure. Send comments, I keep comments open. You can ask me questions there also. There are people who are asking questions.
either on the mail that has been given or on the YouTube itself. So enjoy doing banking. Be a compliant bank is what I personally believe. Thank you so much for watching.